share my story with you, that how did I start the business and where I am today, and how can you learn from my experience and start a business. एक ये मेरा एक टॉपिक होगा, उसके बाद आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हो कि किस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर आप मेरे से सवाल कर सको कि जो आपको हेल्प कर सके। My business name is called Book2Wheel.com. It is an online portal for sharing bicycle, motorbike, and car. If you have a bicycle or a motorbike, you can rent out to other people and earn money. It's a simple concept. So you see the city here. You can search the city where you want to rent a motorbike and what type of motorbike you want to rent. Now, what is the problem that I'm trying to solve with this idea? My idea is based in the Philippines market. In Philippines, like Pakistan, they have a really low income and salary. A guy has to work for 8 hours to earn $9. Like about, we have in Pakistan, a guy gets about 900 rupees. It's the same thing. So what we come up with the idea that everybody has a motorbike, why not they start renting out their motorbike and start earning an extra income? So that was the thought behind for me to start this business. That I saw this opportunity that everyone in the Philippines has a motorbike. Now, here's the picture of a guy named Jackie. Jackie has 3 kids and 1 wife. Jackie had a motorbike, but he does not have a job. Jackie was supposed to send his wife to Saudi Arabia so she can work and his kids can go to school. But then Jackie found out about the Book2Wheel. And Jackie started to rent out his motorbike to the tourists. And he started to earn quickly about $12 a day. And then he quickly realized, why not I get more motorbikes? And then he got more motorbikes. Today Jackie's earning about $1,000 to $2,000 and their families is together. So that was the whole concept. That how can I come up with the idea that can actually help the local people? It was not about me becoming rich or anything. The thought was that what is the problem that I wanted to solve? And I see the problem that everybody had a motorbike. We have also in Pakistan, everybody have a CD70, right? Everybody's like, oh, like, this is the culture. You know? We get the 70 and like, all the guys are like 40 program, you know? Whenever we can use an extra, we can do with the 70 a second thing about the 40 and the other thing, we can move to the 3 seconds. So, what is my business model? How does it work? How do I generate revenue that support my organization? So you see the city, you select the city, you select the type of motorbike, you need a racing motorbike, sports motorbike, all type of motorbikes that you need, you book that. And then you make a booking reservation, the booking reservation goes to the owner, he confirms, and then you go pick up the motorbike. It's like Grab and Uber, you make a booking and then the Grab. So you go to the pick up the motorbike and then you pay him. And Book2Wheel takes 20% of the everything that is being done. So that's how we survive and we are moving forward. So why should people rent through us? Why should people actually start renting out their motorbikes? There is a lot of concern. It can be stolen, it can be broken, and all these things. What we did, we contacted the insurance companies, we brought them in the front, and now we offer 3 types of insurance. We offer comprehensive insurance, theft insurance, own damage insurance, nature disaster, all types of insurance to the renter and to the owner. So that's the first thing, is unique for us that we did in the Philippines market. Philippine market is much worse than Pakistan market. They are still behind, and we are still ahead of them. But it worked.
I had an idea, I had a vision, I started, and it started to work. The second thing what we do is before we put any motorbike owner, we verify them. सबको समझ आ रही है ना? नहीं तो पंजाबी में मैं कर रहा हूँ। उर्दू में कर, आप समझ आ रही है? हाँ उर्दू में। अच्छा, अब जब हम मोटरसाइकिल किसी की अपलोड करते हैं तो हम उसकी पहले वेरिफिकेशन करते हैं, हम उसे फिर अपनी वेबसाइट पे लाते हैं। उसके बाद अगर कोई दो बंदे एक दूसरे को रेंट पे दे रहे हैं मोटरसाइकिल और उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट या कोई झगड़ा हो गया, हम उसको भी हैंडल करते हैं। यानी अगर आपने एक दफा हैंडल की, आप वापस उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, यानी हमने स्ट्रिक्ट रूल्स हमने कर दिए, ये हमारे। उसके बाद अब हम नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं जिसमें रिव्यूज भी आएंगे और तीसरी चीजें आएंगी। अच्छा, अब ये आप लोगों के लिए समझने के लिए एक मैंने चीज बनाई है कि जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं आप उसका मार्केट साइज देखते हैं। You want to know how much is the market size that I am going in. आप ऐसे नहीं उठा के कहते जी चलो बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते। You have to do your homework and you have to understand the market. आपको पता होना चाहिए कि मैं किस मार्केट में जा रहा हूँ। और जब मैंने फुल पाइन में इसको स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं भी अपनी मार्केट को समझूं कि यार इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, कि क्या ये एक सिटी तक देगा, ये ऊपर भी जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा। उसके लिए मैंने होमवर्क किया। मैंने देखा कि फिलिपाइन की पॉपुलेशन क्या है। फिलिपाइन की पॉपुलेशन है 104 मिलियन, जिसको मेरे ख्याल से 1 करोड़ 40 या 4 लाख आप कहेंगे। पाकिस्तान की कितनी कितनी 2 करोड़ 104 मिलियन 200 मिलियन पाकिस्तान। अच्छा, फिर मैंने कहा यार ये सारे बंदे तो मैं नहीं कैच कर सकता। मैंने देखा कि यार ये टूरिस्टिक क्या इसकी स्टैटिस्टिक्स है। उसमें जब मैंने अपनी सेकेंडरी रिसर्च जिसको कहते हैं, जो आपके ऑनलाइन चीजें होती हैं, वो स्टार्ट की तो मुझे पता लगा कि 60 मिलियन, जिसको आप क्या कहते हैं 60 लाख 6 करोड़ मैंने ये चीजें मेरी कंफ्यूज हो रही। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये लोग तो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं जो कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं, क्योंकि फिलिपाइन एक 7,000 जजीरे हैं। आपकी अम्मी यहाँ पे रहती होंगी, पुप्पो वहाँ पे रहती होंगी, दादी वहाँ पे रहती होंगी, तो आपने एक दूसरे से आइलैंड जाना ही जाना है। और जब उस आइलैंड पे आते हो आपको एक स्कूटर चाहिए, क्योंकि हमारे तो पक्के रोड हैं, वहाँ पे भी कच्चे रोड हैं, क्योंकि वो आइलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, पक्के रोड बन नहीं सकते ऐसी जगहों पे ना। तो ये स्कूटर जो होते हैं वो वहाँ पे ऊपर नीचे आ जाते हैं। मैंने कहा चलो 60 लाख तो लोग टूरिस्ट हैं, मैंने कहा 60 लाख में से सिर्फ 5% अगर मैं इनको अपना कस्टमर बना लूं, उसकी मैंने कैलकुलेशन निकाली कि 5% में 60 लाख क्या होगा। फिर क्योंकि मैं एक साल से बिजनेस कर रहा था, मुझे पता लग गया कि मैं एक बुकिंग से $8 कमाता हूँ। पर बुकिंग एवरेज $8.4 मेरी इनकम थी अगर कोई मेरे से रेंट पे लेता था। एक एवरेज 4.5 डेज एक बंदा रेंट कर रहा था। जितने मेरी थी बुकिंग उसको मैंने प्लस माइनस करके एक एवरेज निकाली, मुझे पता लग गया कितने लोग हैं। उसको मैंने मल्टीप्लाई करके 25 मिलियन अपना एक मार्केट साइज निकाल लिया। अब लाजमी नहीं है कि मैं पूरा कर लूँ, ये सिर्फ एक आइडिया होता है कि हमें पता लगता है। आप लोग इकोनॉमिक्स बिजनेस या फाइनेंस की क्लास कर रहे हो, इसको कहते हैं बीच हेड मार्केट। आपकी कि जहाँ पे आप स्टार्ट करते हो उस मार्केट क्या है, फिर आप एक कंट्री से फिर आप देखते हो ग्लोबल मार्केट साइज क्या है। आप ऊबर या दूसरे ये लोग कहते हैं कि हमारी इतने बिलियन मार्केट है, वो पूरा इसको कैलकुलेट कर रहे थे। मैंने एक सिटी का कैलकुलेट किया, यही फॉर्मूला मैं अगर 5 और सिटीज में कर लूं तो मैं इसको ऐड करता जाऊंगा, मेरी एक ग्लोबल मार्केट साइज निकला। उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो लोकल है, अब इसका आप देखते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट कितने आ रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट मैंने देखा 5.5 मिलियन फिलिपाइन में टूरिस्ट आ रहे हैं।
मैंने कहा इसका भी 5% देख लेते हैं, फिर ये 5% मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 8.4 से, वो भी मैंने निकाल लिया। तो मुझे लगा कि मेरे पास एक 27.3 मिलियन की मार्केट है, एक अच्छा स्टार्ट है। इसमें से अगर 2% 1% भी हो गया तो एक अच्छा स्टार्ट। उसके बाद आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ कहाँ तक पहुंचा हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया 2016 में। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया एक सिटी से स्टार्ट किया, आज हम 42 डिफरेंट सिटीज में। आज ये एक वायरस की तरह बहुत जो है फैलता जा रहा है। एक बंदे ने अपनी मोटरसाइकिल रेंट आउट की, इसने 500 कमाया, इसने कहा शबीर तू ही ला दे यार, शबीर साहब ने भी ला दी। And it is getting on and on and on and on. It's becoming a virus now. It's because it creates a value, it's created revenues for someone, and that's benefit them if they go out and tell other people. And then we have now more than 1,000 motorbikes listed on our website. 1,000 से भी ज्यादा। अभी हमारे पास इतनी मोटरसाइकिल है, हमने उन्हें अपलोड करना है। उसके बाद 2017 में हमने इसको ठीक तरीके से ऑपरेशन इसका स्टार्ट किया। पहले साल हमारे पास 478 हमारे पास लोगों ने रेंट की, और हमने 50,000 घंटों के हिसाब से 50,000 घंटे हमने आवर्स इसको रेंट आउट किया। 2018 में हमारे पास 61% ग्रोथ हुई रेंटल्स में, लोगों में भी, और उसमें आवर्स ऑफ रेंटल में भी 1,30,000 हमने इसको रेंट आउट की। ये हमारा एक जो हमने अर्निंग जो हमें 20% मिला, इसका आप 80% कैलकुलेट कर सकते हो जो लोगों को मिला। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस में आपको एक दिन पैसे नहीं आते, इट्स अ टाइम प्रोसेस। पंजाबी में कहते हैं पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तो तीसरे साल बट्टी। So you have to remember this rule. Today you will start something, the next day you will have a little bit loss, you will go in loss, and then maybe third, fourth year you start to go up. So you can say it's a very, very small, the first quarter. Everybody understand the first quarter and second quarter and third quarter, right? The first quarter was very small revenue because it was just an idea. I had like 10 people sign up, and that's where we had. But the good thing was the proof of concept. We have people buying. If you have to start a business, the first thing you have to go, you have to find the proof of concept. Is there is a demand for your product that you wanted to sell to another person, and we had it. We had it first day that people wants to rent out this one. And then you see there is the growth and growth and growth, and there is another growth and growth and growth, and today we are growing. You can see how, and you can see the pattern, the 61% the growth that we have. So हम हर साल जो है हर क्वार्टर हमारी एक ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या अचीवमेंट्स नहीं, हमने क्या किया जब ये 2016 में मैंने ये स्टार्ट किया, तो मैंने ये डेनिश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड के लिए अपना आइडिया पेश किया। वहाँ पे 7,000 दूसरे आइडियाज जिनके से वो लोग आए, कंपटीशन था। वहाँ पे आप 1-on-1 पहले एक जज जिसको पिच करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, 5 मिनट की पिच होती है, आप दूसरे राउंड में जाते हैं, आप तीसरे राउंड में, फिर आप फाइनल करते हैं। उसमें हमने पहला ये प्राइज जीता। You are the teacher. Yes. ये हमारी पहली अचीवमेंट थी जो हमने 2016 में हमने, और ये this was the first thing that boosted our confidence, that we were acknowledged out of 700 startups that we won the first prize, and being a Pakistani and you're winning the first prize in the Denmark, it was a huge thing for us, and that gave me the opportunities that I had today. The second success we had over the period is that we won the first prize of incubator in 2018, and we had the first prize in the forecast. अभी मैंने आपको नंबर पहले दिखाए थे, और अभी मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों प्राइज मिला। कि उन्होंने जितने भी जीतने के बाद कंपटीशन मुझे इंक्यूबेटर मिल गया, मेरे पास डिफरेंट रिसोर्सेज आ गए कि जो मुझे वहाँ पे लोग हेल्प करना शुरू हो गए मेरे बिजनेस के लिए। यानी मेरे पास
पास एक पूरा एक मुझे उन्होंने they provided me, they facilitated me with everything I needed. I had mentors, I had teachers who came every day and looked into me and helped me to move forward when I was making mistakes. जो प्राइज मुझे मिला था वो इस बेस की वजह से मिला था. आपको पहले मैंने नंबर बताया कि मेरी 61% ग्रोथ थी 2018 17 to 18. उसी को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मैं इसी हिसाब से अगर मैं चलता जाऊं एक ऑर्गेनिक ग्रोथ 2019 में मैं 3.6 मिलियन मेरी रेवेन्यू होगी, 2020 में 9.3 मिलियन, 2020 में मेरे पास 23 मिलियन. इसको आप 2 करोड़ कहोगे 23 मिलियन. यानी इस वजह से मुझे एक प्राइस मिला कि मैंने एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाया कि जो कि एक ग्रोथ कर रहा है. और ये हर बंदे को जो वहां पे जजेस से उन्हें नजर आया. उसके बाद टीम क्या है, इस आइडिया के पीछे कौन है. मेरा नाम फुरकान है, आप लोगों को मैंने बताया. I have my first education as a bachelor in civil engineering. मेरे अब्बू ने कहा पुत्र इंजीनियर बनना है, मैं बन गया इंजीनियर. That was for my family. And then after I graduated, I wanted to do what I wanted to do. And I had, we have this society and the social norms and social value that we have. My family is all engineers, so I have to become an engineer. So I did that graduation for my family. My mother said, पुत्र डिग्री लगनी चाहिए दुआ देते. मैंने वो डिग्री उनकी that diploma is on the wall. I have not really practiced anything on that, but I use that knowledge, and I will tell you where I use that knowledge. I have board of directors. Benjamin, he's a Frenchman, and he's helping me. We're looking at the board of advisory. Before we take any step, we have created a board that we sit down with them and we talk with them and we tell them that what's our plan that we want to achieve. And we set the goals, and they help me to set my goals for the next things that I have to develop for my business. We have a full stack developer. We are a very dynamic team. We have today organization team in Denmark, in Philippines, and we have expanded in India as well. Jigwon, ye investor, he was the first guy who evaluated us and gave us the investment. Queenie, she's from Philippines. She takes care of our sales and support in the Philippines because we are working in the Filipino market. And then we have Stephanie. She's a graphic designer. She do the graphic designs for us. Now these are the things that I have prepared for you before coming here. And now what I'm going to start is not prepared. So I'm going to just tell you the story of my life that sir, आपने मिस की है चीजें. मैं It's okay. I will pick up. All right. So a lot of people say either you are born entrepreneur or you are made entrepreneur. मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैं छोटा था, when I was in my primary school, I had two principals and they were my aunt. मैं जिसे कहते हैं टाटो वाले स्कूल में पढ़ा था, MC Junior College. And I never forget where I came from. Even today, where I am today doesn't matter because I have to remember where's my roots. मेरी दादी ने क्या किया, उन्होंने क्या पुत्र सेसों दिए तो कैंटीन ला लेने. I was only 8 years old that time. So we used to go, Delhi Darwaza, we used to buy this lollipop for 30 rupees and there was 100 lollipops in the pack. And we used to sell this lollipop for 1 rupee. So we had a gross profit margin about 70 rupees. 30 रुपए के खरीदे, उसमें 100 आ गए, उनको 100 का बेच दिया, 30 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट थी और 70 उसमें से प्रॉफिट हो गया. आसान कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको. If you have to do business tomorrow, you will have initial investment, something, and then you will calculate what's the gross profit that I'm going to sell. And that's what you have to do. You have to calculate your gross profit margin, and then there will be a lot of marketing expense and all this thing. In our case, we don't have any expense. We used to go and we buy, we walk to the shop and we buy and we sell it. ये मेरा एक पहला एक लेसन था लाइफ में कि बिजनेस कैसे करना है. उसके बाद मैंने मैट्रिक की.
I had a really low grades in my metric. Why I'm telling you, it doesn't stop me any day. I moved forward. I had my diploma in DAE, Associate Engineering, Civil Engineering from Ahmedabad Polytechnic. After I graduated, I moved to the Philippines, and I started to do this bachelor's in civil engineering. हम वहाँ पे 3 कज़न इकट्ठे गए थे, और हमारी यूनिवर्सिटी में काफी ज़्यादा foreigners थे. I realized, why can we not turn something into an opportunity? There is an opportunity, and why can we do something? So we sit down together and we said, what can we do now? And I said, we can open a restaurant. And we all agreed, and we opened a Pakistani restaurant there. We bought vegetables in the morning, we cooked, and we started selling. And that's how we started to start a small business. After a couple of days, my cousin said, "Yaar, main paran aaya, main rupees ka mila deta san." We threw everything and we stopped that business. So that was the first failure in that business model that we started, and it was fine. We took an initiative. We started something. It taught us something, that we can do this thing, because whatever we did, it created a revenue for us. We will buy for 500 and sell it for 1500. And that's what you need to look into when you do business, that do you make profit? You can't use your money and not make profit. A lot of people like, we are doing business, but if the business don't make profit, there is no... there's a one thing is called FFF. Fail, fast, forward. Do something, go out there, try it, fail, and then move on. In Japanese, they say ginshi jubutsu. It says go out and see yourself. If you sit down in incubator or in a class and do all the paper things, that all the ideas you have, and you never go out and you never try and you never fail, you're never going to move forward. That was the thing in my case, that I had this ability to fail, and fail hard. And where did I get this ability? I told you I had a very low marks in the metric, you know. And in Pakistan, it's all about metric, FSC, and all this thing. And today I'm doing the master's in international tourism and leisure management, one of the leading university, and I had scholarships. I had a problem, dyslexia. You have watched the Tare Zameen Par. I can say, but I cannot write things. It's hard for me to write. Sometimes I can't even write my name, I forget the spellings. I have this problem. Besides the failures and all this thing, I never stopped. I moved forward. The second business I did was, again, I graduated, and this was the things like, you might face that, but I faced. After you graduate, you kind of have a kind of depression thing. We don't know what to do next. In our society, we are very comfort. We have this comfort that we have a friends and family, and they can help us to hook up with any government or anywhere. You have that. I didn't have when I was in the Philippines, so I was very confused. मुझे बहुत एक डिप्रेशन सा हो गया कि यार करना क्या है, डिग्री तो ले ली, आगे क्या करना है, समझ नहीं आ रही। कोई रास्ता एक छोटी सी एक डिप्रेशन टाइप से था। मैंने कहा यार हमने रेस्टोरेंट का एक काम शुरू किया था, दोबारा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। I started again restaurant, and this time I was successful because I had this last experience. And this time I hired people, and I had a management. I had a good supply chain management. The guy would go to buy vegetables. I taught someone, he will cook, and then we will deliver in the school and all these things. Supply chain management is a very important thing in business. उर्दू ज़ुबान में आप इसे क्या कहेंगे? Connections क्या कहेंगे इसको? Liaisons. उर्दू में नहीं कहेंगे, लेकिन liaisons बनाएंगे। आप एक चेन नेटवर्क बना रहे हो कि बशीर तू सुबह जाके सब्जी लानी है, इसमें तू हमें पकाना है, ऐसी रात में ना I will go. My Urdu is not good, so I will go with the Punjabi. It's alright with you guys to use my काम को divide करना। You make an organization structure.
And that's the most important thing to start anything that you want to do. It went successfully. And then something changed in my life. I met a woman in Philippines. We got married and we moved to Denmark. Very fairy tale story, yeah? क्या आपको लगता है हर fairy tale story का अच्छा एंड होता है? इसका भी एंड बहुत बुरा था। भाई 1 साल कटके रहे, डेनमार्क चला गया वहां पे। अब वहां पे आपको वीजा देने में भी वो 1 साल लगा देते हैं। आप 1 साल आप काम भी नहीं कर सकते, तो घर से पैसे मंगवा लेते थे। 8 साल के बाद कोई भी, it's a natural reaction, any woman, you know, she would say go out and work, and I couldn't go out and work because I didn't have a residence permit. तो हमारे दरमियान एक इख्तलाफात आना शुरू हो गए दोनों के दरमियान। और उन इख्तलाफात का ये हुआ कि एक दिन उसने कहा कि चल पुत्र उठ निकल। भाई उसका मुल्क था, मैं क्या कर सकता था। उसने मुझे 50 क्राउन दिए और एक टाइम का खाना बना के उसने मुझे वो एक होमलेस पीपल जगह पे उसने मुझे बाहर छोड़ दिया। अब मैं वहां पे बैठ के ऊपर देख के रो रहा हूँ। मैं कह रही हालांकि यार रोई जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कि जाऊँ किधर। किसी को तो मैं जानता था, घर वालों को भी नहीं बंदा बता सकता शर्मिंदगी से कि हुआ क्या। शादी तो बताया था, शादी तो बताया था, लेकिन हमारे पाकिस्तान में पता क्या कहते हैं जब हम फेल हो जाते हैं क्या सीधे तो पढ़ाई करने पे जियादी तो होती जिसका अपने पै गए। यानी ये हमारे कल्चर है और इसको मैं बुरी बात नहीं कहता, हमारे कल्चर है, अगर ये हमारे से चला जाए तो फिर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। और हमारा जो कल्चर है वो हमारे साथ रहेगा। मैं दुनिया के किसी कोने में भी चले जाऊँ, मेरे से उर्दू नहीं बोली जाती, पंजाबी बोली जाती है, क्योंकि मैं लाहौर, मेरी अम्मी जो थी वो अंदरून दिल्ली से वाली थी, बट कश्मीरी। अच्छा, उसने निकाल दिया 50 रुपए मेरे जेब में थे। अब मैंने एक दोस्त को मैंने उसे बताया, मैं कहा, उसने कहा कि आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ। उसने मुझे खाने के लिए दिया, मुझे कुछ सुकून आया, खाना खाया मैंने, उस दिन सोया। सुबह मैंने दुआ मांगी अल्लाह से कि आप कुछ काम शुरू करते हैं, जो होना था वो तो हो गया। मैं काम की तलाश में निकला, मुझे एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया, मैंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया। अब मैंने उस दिन से अपनी लाइफ में कहा कि यार मैंने स्ट्रेटेजिकली अपनी लाइफ को प्लान करना। मैं इस तरह नहीं प्लान करूंगा कि मैंने किसी से मिला, मैंने शादी कर ली, चला गया। क्यों किया मैंने अपने रिफ्लेक्ट किया अपनी फेलियर्स पे कि यार इट्स फाइन, व्हाट हैपेंड इट हैपेंड, बट लेट्स लुक इनटू व्हाट मिस्टेक आई मेड। एंड आई लुक्ड, इट वाज नॉट ओनली हर फॉल्ट, इट वाज माय फॉल्ट इक्वल। इन इंग्लिश दे से tango is done by 2 people, और पंजाबी के ताली 2 हथां नाल बजदी है। It was my fault equal as her fault. But today I'm thankful to her. Where I am today is all happened because of her. If she wouldn't have kicked me out of the comfort zone, I would never try to do what I'm doing today. मैंने प्लान किया कि यार अब मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़नी है और बिजनेस पढ़ना है कि आगे बिजनेस करना है। अब उसके लिए मुझे फीस चाहिए थी। डेनमार्क में आपको फीस पे करनी पड़ती है और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा फीस करनी पड़ती है। मैंने कहा वो क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है। अब मैंने 1 सेमेस्टर की काम करके दिन रात न्यूज़पेपर डालने जाना, क्लीनिंग के स्कूलों में सफाइयाँ करनी, रात को किसी का काम करना, यानी एक मैंने सेमेस्टर की जो फीस थी वो मैंने जमा करना। अब मेरा गोल था कि सेकंड सेमेस्टर में मैं स्कॉलरशिप लूंगा तो मैं आगे मेरा ये 2 साल प्लान होगा। सेकंड सेमेस्टर में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, मेरी लाइफ को थोड़ा सा ठंड प्रोग्राम हो गया। अच्छा, वहां पे मैंने मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसने मेरा दिमाग खोलना शुरू कर दिया। वहां पे जो एजुकेशन होती है एक प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होती है। वहां पे हम लोग एग्जाम्स नहीं देते, हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट ला के काम। अब आप लोग कहते हो कि यार मैंने एक बिजनेस पे काम करना है, वो कहते हैं बिजनेस प्लान बना रहा हूँ। अब बिजनेस प्लान में क्या होता है कि आपका इंट्रोडक्शन होता है, आप अपना स्टार्टअप का बताते हो,
उसके बाद आप बताते हो कि यार आपका प्लान क्या है, आपने कैसे एग्जीक्यूशन करनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपकी बैकग्राउंड स्किल्स क्या है। उसके बाद आप बजट एंड फाइनेंस करते हो। आपको ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू करते हो तो आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है कि बजाय मैं एक किताब पढ़ूं, मैंने आज तक आप किताब नहीं खरीदी जो मैं अब इतना ऑनलाइन मटेरियल्स आपको ये आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ये गूगल स्कॉलर से हर तरह के आपको आर्टिकल्स किसी भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने रीडिंग शुरू कर दी। जो चेंज आया मेरी लाइफ में वो मैंने रीडिंग स्टार्ट की। अच्छा, एक साल मैंने जब मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया, मैंने कहा यार ब्रेक लेते हैं, इसको जाके टेस्ट करते हैं। अब मैं फिलिपाइन में आ गया, अब मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहा था। मैं गया ट्रेड शो पे जहाँ पे वहाँ पे कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस होता है, लोग बेचते हैं वहाँ पे। मैंने उस एक सेलर से पूछा, मैंने कहा यार तुम 100 ml की कितने की बोतल देते हो? कहता 52.50 की आपको दे दूंगा। मैंने उसकी तस्वीरें उतारी, मैं अलीबाबा पे गया, मैंने उसकी वो तस्वीरें वहाँ पे लगाई और अगले दिन मुझे एक बायर ने कांटेक्ट कर दिया। उसने कहा मुझे 5000 बोतलें चाहिए। मैं कहा अभी तो मैंने काम ही नहीं किया, तो 5000 रुपये कैसे? मैं कहा 1000 से शुरू करते हैं ताकि मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाए और उसके बाद जितने तुम कहोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब मेरी यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट थी। मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास से शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिजनेसेस कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। ऑल यू नीड इज द ब्रेन, माइंड, विल पावर, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू डू बिजनेस। मैंने उसे कहा कि आप 50% मुझे पहले दें, मैं आपको जब मुकम्मल हो जाएगा आप मुझे 100% दे देना। उसने कहा ठीक है। मैं मिला उससे, अच्छे तरीके से मिला, उसे मैं बताया। मैंने कहा एज ए सिक्योरिटी तुम मेरा पासपोर्ट रख सकते हो, मैं यहाँ से भाग तो जाऊंगा नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे पे ट्रस्ट है, तुम करो। उसको मैंने 50% ट्रांसफर कर दिए सप्लायर को, उसने माल बनाया, बेच दिया, 100% ट्रांसफर कर दिए, एक सप्लाई चेन बन गई। मैंने आपको बताया वर्ड सप्लाई चेन, व्हाट इज द सप्लाई चेन वैल्यू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने एक सप्लायर ढूंढ लिया, मैंने एक बायर ढूंढ लिया, मैं एक बीच में मिडलमैन बन गया। और मिडलमैन इस तरह बन गया कि कोई भी चीज होगी वो मैं अपने ऊपर लूंगा, उसका नुकसान भी बढ़ूंगा और उसका भी बढ़ूंगा, दोनों को मैंने श्योरिटी दे दी कि कोई मसला होगा तुम्हें टाइम पे मिलेंगे और तुम्हें टाइम पे मिलेंगे। क्योंकि मैं वो साल लगा के डेनमार्क से आया हुआ था, मेरे पास कुछ कैश था और मैंने उस कैश को ऐसे यूज किया, मैंने उसे एज ए पावर यूज किया, मैंने उसे इन्वेस्ट नहीं किया। जब आपकी जेब में पैसा होता है ना तो आप बड़ी चीजें कर लेते हैं, लेकिन मैंने उस पैसे को एज बैकअप कह लो, और इसको इकोनॉमिक्स में इसको लाइबिलिटी क्या इसको बोलते हैं, कैश इन हैंड। हाँ, मैंने उसको इस तरह यूज किया कि मैंने लेवरेज बना ली कि मैं अगर आपसे 5 लाख का कर रहा हूँ तो मेरे 5 लाख मेरे अकाउंट में हैं, ताकि अगर मुझे लॉस भी हो गया तो यार मैं अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं जाऊंगा। Never lose your credibility. Honesty is the number one thing. And the people you are sitting here can recommend you tomorrow. अगर आप आज आप आपस में चलोगे तो यार कल को आपको ये काम आएगा। अच्छा, तो ये मेरा एक कारोबार शुरू हो गया। हर महीने 5000 10,000 बोतल्स में उसको बेचना शुरू हो गया, मेरे पास एक कैश फ्लो आ गया। उसके बाद बुक टू बिल मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं वो आपको स्टोरी सुना। तो ये किस तरह आइडिया आया और ये किस तरह स्टार्ट हुआ। उस साल जब मैं फिलिपाइन में था तो क्योंकि मैं डेनमार्क से आया हुआ था तो मेरा जो नेटवर्क था वो डेनिश नेटवर्क था। मैं उन मीटिंग्स में जाता था जिनमें डेनिश लोग थे और मुझे डेनिश भी बोलनी आ गई थी। आज मैं माशाल्लाह 4-5 ज़बानें बोल लेता हूँ, जिनमें फिलिपिनो भी है और डेनिश भी। तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था, गपशप लगा रहा था, तो एक लड़की ने मुझे कहा कि यार मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन की। मैंने उससे पूछा कितने पैसे स्पेंड करते हो? कहती रोज के 200 रुपए की टैक्सी लग जाती है काम पे जाने की और काम से आने की।
मैंने कहा अगर मैं तुम्हें अपना स्कूटर दे दूँ 6,500 मंथली का, तुम लोगी? उसने कहा लूंगी अगर इसके साथ फुल इंश्योरेंस भी दो तुम। मैं कहा अच्छा ये भी अच्छी बात है। और उसने मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया इंश्योरेंस का। मैं इंश्योरेंस वालों के पास पहुंच गया। मैंने कहा कोई इंश्योरेंस करते हो आप? उसने कहा हाँ, साल की आपकी 2,000 रुपये की इंश्योरेंस कर देंगे, तो जो भी हुआ इसको कवर कर देंगे। मैं कहा यार कुछ हो गया। 500 मैंने उसको इंश्योरेंस का मंथली एक्स्ट्रा चार्ज करने शुरू कर दिया। यानी मैं उसे एक सर्विस दे रहा हूँ, उसका मैंने पे किया, लेकिन उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। 2,000 की इंश्योरेंस थी, 500 मैंने, यानी उसमें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल दिया। मैंने कुछ भी किया, मैंने उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाला। एक लड़की ने स्कूटर लिया, 5 अगले दिन आ गई दरवाजे में खट 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 करने, ये क्या हो गया? मैं कहा मारना आ गई है लड़की। मैं कहा बच्चों अच्छा, उन्होंने कहा दरवाजा तो खोलो। मैं कहा बात तो बताओ, स्कूटर चाहिए बेटे आपको तो डर रहा। मेरी जान में जान आ गई। मैं कहा अच्छा, मैं कहा अभी तो नहीं है, मुझे 2-3 दिन दो। मैं वापस उसी शॉप पे गया। मैंने स्कूटर किश्तों में लिया हुआ था, इस तरह यहाँ पे किसी को देते हैं इंस्टॉलमेंट से, वहां पे भी दे देते हैं इंस्टॉलमेंट। उर्दू मेरी कच्ची है, पंजाबी के वर्ड्स आएंगे, इसको माइंड नहीं करना। अच्छा, मैंने 3-4 स्कूटर नहीं करवा लिए। मैंने उन्हें स्कूटर को फुल इंश्योरेंस करा के उन सारों को दे दिया। अब जब उन्होंने देखा तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड लाइक फायर। यार मेरे पास और लोग आना शुरू हो गए, हमें भी स्कूटर चाहिए। अब मेरा एक नेबर रहता था, मैं भी यार तुमने अपने स्कूटर रेंट पे देना है क्या? दे दो सर। मैंने उसका रेंट पे दे दिया। मेरा एक आगे दुकानदार वापस था, मैं कि यार स्कूटर खड़ा रहता है, रेंट पे देके तुम्हें 500-600 पीसो आ जाएगा, 500 तो मोबाइल दुकान से नहीं कमाते। यार ये तो बात उसका भी मैंने स्कूटर रेंट पे देना शुरू कर दिया। करते करते मैं रेंटल शॉप्स पे जाना शुरू हो गया। मैं कि यार आप लोगों भी मुझे, मैं आपको कस्टमर ला के देता हूँ। अच्छा, लोगों ने मेरे पास आना, मैं मोटरसाइकिल पे बिठा के डिफरेंट लोकेशन पे उन्हें लेके जाता था, तो उनकी रेंट पे कराता था। बीच में से मैं एज 20% मैं उसमें से लेता होता था अपनी सर्विस के लिए। फिर मुझे आइडिया है यार इसको ऑटोमेटिक क्यों ना किया जाए। मैंने ऑनलाइन पोस्ट किया, एक डेवलपर मुझे मिल गया। मैंने उसे कहा कि हम इसे मिलकर करते हैं। अब हमने नाम रखना था, नाम क्या रखें? मैं कहा यार ये बुक टू व्हील होना चाहिए, ये बुकिंग के साथ 2 व्हील, समझ भी लोगों को आएगा। वहां से हमने इसका नाम रखा बुक टू व्हील। हम सोच रहे बैठ के, 3 बंदे बैठे हुए सोच रहे नाम क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। मैं कहा बुक टू व्हील होना चाहिए। उन्होंने इसको पकड़ लिया नाम को। अच्छा, वेबसाइट हमने बनाई। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ, जब आप कोई चीज बनाते हैं परफेक्ट, कोई बंदा आपसे उम्मीद नहीं रखता कि आप 100% ही बना के जाएं। हमने क्या किया, एक इनिशियल फेज, जिसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं, MVP, वो हमने बनाई, उसको लॉन्च किया। हमने देखा कि लोग साइन अप करते हैं। फिर मैं एक सिटी से दूसरी सिटी गया, दूसरी सिटी से तीसरी गया, जितना मैं घूम सकता था फिलिपाइन के हर आइलैंड में मैं गया, और वहां से मैंने उन लोगों को लिस्ट करना शुरू किया उनकी मोटर बाइक। मुझे अब पता लगे ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब मैंने क्या किया, वापस गया डेनमार्क, मैंने और लोगों से मिला और लोगों से बातचीत की। यानी मैंने मैंने उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब वो ये हुआ कि आज वो एक ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म बनता गया, और उसके साथ मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना दी। मैंने फिलिपाइन में एक कंपनी रजिस्टर कराई। ये बहुत लाजमी है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कॉर्पोरेशन रजिस्टर कराएं, उसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, ताकि आप पे कोई नुकसान ना आए। आप लोग ये मेरे ख्याल से पा रहे हो ये चीज़ें। हाँ, ये मेरा रेंज है ना, रेंज ये खराब करेगा। हाँ, सॉरी, हम बोले बोल नहीं सकते। प्योर लोग, कटर लोग, बोल ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई ताकि कल को अगर कोई नुकसान हो तो अगर मेरे अकाउंट में 1 मिलियन है, वो ये ना कि तो मेरे पैसे निकाल के लेंगे। कंपनी की है, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। आपकी बहुत लाजमी है इन चीज़ों से, क्योंकि आप ये चीज़ें सीख रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करो, एक अपनी बनाओ
3-4 बंदे मिलके जो कि आप कुछ काम करना चाहते हो उसकी डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, ताकि कल को आपको पर्सनल नुकसान ना हो कि कोई बैंक वाला आ जाए पारी तड़का के भी रख लेने, ये चीज़ें नहीं करते। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको लेके रखते हो, उससे आगे चलते हो। वहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लोकल लोगों को हायर किया। जब भी आप कोई काम करते हो आपको लोकल लोग चाहिए होते हैं जो कि जुबान बोल सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें। मैंने एक स्ट्रक्चर बना